ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ गुजरात तो शुरू किया जिथे बहुत औखा काम से उत्थे सफल होए सी। मूल बात जो है वो एक तरफ संघी भाजपी है, वो हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है हर बात को सत्ता और संपत्ति के अधिकार को विकेंद्रित करने का जो कार्य है ये इसी संगठन सृजन में हमने करा। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ VOTING ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ गुजरात ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਜੇ ਬਾਂਸੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਸਰੀ ਬੁੰਸਰੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਰੀਏ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਖਬਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਗਿਲਾ ਕਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ प्रधान। राहुल जी और खड़गे जी के निर्देश पर पूरे भारत में एक साथ संगठन सृजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय
2024 में बेलगांव अधिवेशन में लिया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और तब तय हुआ था कि जनता से और पूरे भारत में हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता से कनेक्ट होने के लिए हम लोग संगठन सृजन का कार्य करेंगे। और इस संगठन सृजन के कार्य में हमने शुरुआत जो है वो गांधी के गुजरात से की। गुजरात के अंदर महात्मा गांधी ने वहां पर अपना, जहां से ये ब्यूगल फूंका था साबरमती के संत, वहां पर गुजरात से ये पहल किया। और उस पहल के तहत हम लोगों ने पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन भी था गुजरात में 41 जिलों में ये प्रक्रिया करने के बाद ये प्रक्रिया बहुत अच्छा रहा। तो उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में प्रोसेस हुआ, उसके बाद और 4 राज्य जिसमें पंजाब भी है। तो कुल मिलाकर अभी 10 राज्यों में इस संगठन सृजन की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता तय करता है कि अपने जिले का प्रधान कौन होगा। सो कार्यकर्ता को प्रधान जो है वो जाकर संपर्क करेगा, मिलेगा और कहेगा कि मैं बनना चाहता हूं। तो पहले जो 5 नेता या 5 राष्ट्रीय स्तर के लोग तय करते थे, उसकी जगह पे अब कहीं कहीं पर 1000, 2000, 5000 तक कार्यकर्ता मिल रहे हैं, और वो हजारों कार्यकर्ता मिलकर अपना प्रधान तय कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया सिर्फ जिले के प्रधान की नहीं है, आगे जाके यही प्रक्रिया ब्लॉक में होने वाली है, यही प्रक्रिया आगे जाकर मंडल में होने वाली है। तो ये पूरी तरह से धरातल तक, हम बुनियाद तक यानी कि बूथ तक ये प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। मूल बात जो है वो एक तरफ संघी भाजपी है, वो हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है हर बात को, सत्ता और संपत्ति के अधिकार को विकेंद्रित करने का जो कार्य है ये इसी संगठन सृजन में हम लोग कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ नहीं ਹੁੰਦਾ जिथे शाखा लगती है। देखिए, मैं पंजाबी, आपने सवाल पंजाबी में पूछा पर समझ चुका हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि और देश भर में मैं कहता हूं कि भारत में रहने वाले को भारत का राष्ट्रगान गाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सर्वोपरि गाना है। अपनी शाखाओं में राष्ट्रगान की जगह पर सदा वत्सले गाएंगे तो ये भारत माँ के साथ गद्दारी है। भारत में रहने वाले को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको फहराना चाहिए, ना कोई एक रंगा ना दे रंगा, देश में तो सिर्फ चलेगा तिरंगा। तो ये जो तिरंगा झंडा है उसका अपमान, और मैं आपको वहां तक कहता हूं जैसे गुजरात में और कई राज्यों में भाजपा की जहां सरकार है वहां ब्रिज बनते हैं और ब्रिज के कॉर्नर पे भारत माँ के हाथ में तिरंगे की जगह पर एक रंगा होता है। तो ये भारत माता का अपमान है, ये हम नहीं सहेंगे, ये बात भी है। साथ ही साथ संविधान सबसे सर्वोपरि होता है, संविधान को बार बार दरिया में फेंकने की बात करेगा तो ये भारत माता के साथ गद्दारी है। हम लोग ये भी कहते हैं कि भारत माँ की 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, ये इसके बीच में ये लड़ाई किसने लड़ाई, ये खून की नदियां किसने बहाई, वो भी ये है, इस देश के साथ गद्दारी है। सर किसी मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ भी राष्ट्रीय गान गाया जाता? बिल्कुल, मैं मानता हूं हमें मंदिर में और मस्जिद में राष्ट्रगान गाने की बात नहीं कर रहा हूं। मंदिर और मस्जिद में धार्मिक सॉन्ग होते हैं, पर मदरसों में राष्ट्रगान होता है, तो शाखाओं में भी राष्ट्रगान होना चाहिए। वो चाहे मदरसा हो चाहे शाखाएं हो, जहां पर इस देश की कोई भी कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले जो है वहां पे राष्ट्रगान होना चाहिए। हमारे हर प्रशिक्षण कैंप में, सेवा दल में और कांग्रेस पार्टी में वंदे मातरम से शुरू होता है और राष्ट्रगान से कार्यक्रम खत्म होता है। तो जो लोग पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविज्म में है उनको राष्ट्रगान गाना चाहिए। हर धर्म का अपना ग्रंथों के हिसाब से जो गाना है वो तो अलग है, वो धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, वो अपनी भक्ति अलग है, वो करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पंजाब की, हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਗੇ ਹੋ कि डिस्ट्रिक्ट ਦੇ? देखिए, हम लोग पूरे पंजाब में 29 जिलों के लिए, 29 जिले और शहर के लिए 29 ऑब्जर्वर लगाए हैं, प्रदेश के भी ऑब्जर्वर लगाए हैं। हर स्टेट में पूरे भारत से कहीं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व हमारे मिनिस्टर्स से लेकर अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पे आए हुए हैं। और भैया आप लोग बात करो उस मुद्दे में, इसलिए क्योंकि मेरा आज का जो काम है वो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ संगठन सृजन का हूँ। और मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं बात जरूर कहूंगा कि हमारे देश में जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर विभाजन करके किसी भी प्रकार की घृणा, किसी भी प्रकार की हत्या, कोई भी हिंसा होती है तो वो गलत है। हमारे देश का संविधान उसकी किसी को छूट नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती वास्ते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान आगे साहब और साडे देश के नेता
राहुल गांधी जी का जो संदेश लैके हर जिले के जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के तरफ से वर्कर ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲ ਸੰਘਾਰਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ और होर भी सारे जिहड़े मेरे नाल नहीं भी सहमति रखते वो भी अज इत्थे आए ऐसी गल नहीं हैगी और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मौका दिता जाऊगा ਜਿਹੜਾ प्रधान बनना चाहता ਕਿਹੜਾ ब्लॉक का प्रधान बनना चाहता ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के काम करना चाहता ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है सुनी जाऊगी और हाई कमान तक पहुंच बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ और सारे साई उन्हों का सब संतान उन्हों का साढ़े पंजाब प्रदेश के सेवादार के प्रधान जी उन्हों का और अश्विनी कुमार शर्मा जी साढ़े जोड़े के ऑब्जर्वर लगते हैं गांधी साहिब के खैरा साहब ने और भी कांग्रेस पार्टी के लगे हुए सारे का और खास तौर पर थोड़ा प्रेस वाले का मैं बहुत धन्यवादी हाँ और खास तौर पर भरोसा थोड़ा जिन्हें चौधरी गल्लां भी सृजन अभियान पूरे हिंदुस्तान और राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने चलाया और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਆ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ और हुणे बोल के गए ने साडे जिले के प्रधान मंगूपुर साहब खेड़ा जी ऑब्जर्वर के नाल अश्विनी जी लुधियाने तो के नाल ऑब्जर्वर ने और सेवादार के चीफ और इतनी सिक्खनी भी चाहिए क्योंकि नेशनल बोली अपनी सो कहने का भाव एक ही है हर कांग्रेस वर्कर को ऐसे लगता था कि कांग्रेस वाले हमें पूछते नहीं है जिला प्रधान बना दिया दिल्ली पे जिसने चाय पिला दी जाके उसी को बना देते हम तो उसको जानते नहीं और कहते हैं फला अहदेदार बना दिया हमें तो पूछा नहीं है। ये सभी आपकी जो शिकायत थी सीआईडी के तौर पे और कांग्रेसमैन वहां जा जाके बताते रहे हैं कि हमें पूछ के बनाओ कुछ बनाना है। राहुल जी ने खड़गे जी ने ये पूरे हिंदुस्तान में फैसला दिया कि पहले लीडर बनाने से पहले प्रधान बनाने से पहले वर्करों से पूछो। पूरे हिंदुस्तान में यह अभियान चल रहा है। आज आप के घर पर आके राहुल गांधी जी का मैसेज लेके जो इनको काम दिया है हमें दिया है आपसे एक एक को पूछना है किसको भैया प्रधान बनाना है आप किसको चाहते हो किसको जानते हो कौन बढ़िया काम कर रहा है क्या पहले वाला ठीक काम कर रहे हैं उसके बाद कौन और हो सकता है तीसरा कौन हो सकता है चौथा कौन हो सकता है। अकेले से अकेले में बात होगी कोई किसी को पता नहीं चलता वेरी सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा जो आपके मन में आए एक एक अहदेदार बनकर सीधी बात करके अपनी बता के जाना फिर ना कहना हमें तो पूछा ही नहीं है। अब आपके घर पे आए हैं पूछने के लिए आप दिल्ली में नहीं जाके बोल रहे आपके घर पर राहुल गांधी जी की टीम आई है आपके मन की बात पूछने के लिए कि कांग्रेस का लीडर कौन चाहिए किसको प्रधान बनाना है। मैं फिर अपनी तरफ से और आपकी तरफ से देसाई साहब का लाल जी का पूरे पूरे धन्यवाद करता हूं और ये खुले दिल से बोलते हैं 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं और मैं कहूंगा कि शहीद
चौधरी जगत राम जी के बेटे, जिन्हों ने अतवाद का टाइम होवे, आजादी का वक्त होवे, अहम योगदान कांग्रेस पार्टी और देश की सेवा च पाया। सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के मेरे वर्कर साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और नौजवान साथियों, हिंदी समझ आएगा तो आ जाएगा ना। हुण तां पिंडां च बीबिया भाई ओके ठीक है। है कि मैं थोड़ा हिंदी में भी दस दूंगा कि साई साहब ने कि जेड़ा कल्ले नाल कल्ली थोड़ी मीटिंग कि एक आदमी सीधा दसाई साहब से पीसीसी ऑब्जर्वर से मिलेगा और अपनी बात साझी करेगा जो भी आपके मन में है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो बात बाहर नहीं जाएगी, वो आप दो जनों के बीच में बात है कि जेड़ी गल तुसीं साझी करोगे ना तो अजय मंगू पर नु पता लगनी है, ना सूद साहब नु पता लगनी है, थोड़ी गल थोड़ी ते सीधी जुड़ी ਇੱਥੇ तक थोड़ी गल पहुंच जानी है और वो मैसेज दिल्ली जाके जेडे AICC हैगी आ उत्थे लिख हो जाना कि बंगे विच आ बंदे ने सानू आ गल्लां कहीआं उहदे मुताबिक ਅਸੀਂ आ बदलाव करेंगे। तां तसल्ली नाल पहले दसाई साहब ने पहला भी किया, बड़ा चौड़ी मीटिंग सुनिया, नवा सौदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना। उन्होंने नाल साडे नाल अश्वनी शर्मा जी जेडे कि डिस्ट्रिक्ट प्रधान रहे लुधियाने तो उन्होंने ड्यूटी लगी हुई, उन्होंने नाल नाल 13 साल जेडे सेवा दल के पहला प्रधान रहे और हुण जेडे सेवा दल के प्रधान ने चुने, वो सारी टीम इत्थे पहुंची हुई है। मकसद धर्मसोत जी लुधियाना तो अश्विनी कुमार जी जिहड़े कि ऑब्जर्वर के तौर पर और साडे पंजाब के सेवा दल के चेयरमैन साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जी अजय कुमार मंगूपुर जी और खैरा साहब जिहड़े कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों पहले ही साडे ऑब्जर्वर लग चुके हैं और सारे ही सत्कारयोग जिन्ने भी उन्होंने नाल साथी आए ने और बंगा ब्लॉक औड़ ब्लॉक के सारे ही साडे जिला परिषद के मैंबर साहबान, संमतियां के मैंबर साहबान, ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडों तो आए हुए सरपंच पंच नंबरदार साहबान और कांग्रेस पार्टी की हम चलेंगे, राहुल जी से कौन चलेगा? हम चलेंगे, हम चलेंगे। किसान की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूर की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। महिला के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देसाई साहब ये भी लोग कह देते हैं कि जब इलेक्शन आता है और वर्कर साथियों को रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं और आगे पीछे कोई पूछता नहीं। मगर नवांशहर जिला जो है जहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई फंक्शन है वो चलता ही रहता है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
हमारे जो अजय मुल्कपुर जी है, ये दोपहरा जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाले भी हमेशा ये ताड़ना करते हैं कि भाई